Hello and welcome again students to the second lecture of chapter number 1 for class 11th. And so in our previous lecture we were talking about अभी तक हमने जो पढ़ा है previous lecture में वो पढ़ा था क्या characteristic feature होते हैं living, non living और एक dead organisms के बीच में. आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें next topic पढ़ना है that is referred to as the biodiversity. So what is the biodiversity or diversity in the living organism? So which type of biodiversity is found in the living organisms? Let me just check. You can visualize the things. Yes. It would be better if I am going to switch off like this. Now, in the case of diversity of living organisms, diversity refers to as sum total of all the different types of living organisms that resides over the planet Earth. अलग अलग तरीके के living organisms planet Earth के ऊपर रहते हैं. उन सब का अगर हम sum total कर देते हैं, the sum total of all the different living organisms present over the planet Earth refers to as the biodiversity. So biodiversity basically refers to some the sum total of all the diverse living forms present over the planet Earth. तो जितने भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उन सबको अगर हम मिला लें तो बनती है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को समझने से पहले हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना पड़ेगा. What is the hierarchy of living organisms? What is the hierarchy of organization of this living world? The hierarchy, the key fundamental unit for the life on this planet Earth is the cell. The cell is the structure and functional unit of life. I have also told this in my previous lecture. मैं बताता रहता हूँ हमेशा, दुनिया में लाइफ की अगर हमें हायरार्ची को समझना है, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझना है कि लाइफ कैसे बनी है पूरी दुनिया में, किस तरीके से बायोस्फीयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में, कोशिका के बारे में समझना पड़ेगा. तो सेल्स क्या होते हैं? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज रेफर्ड टू एज. सबसे इंपॉर्टेंट है सेल. सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ tissues. Tissues leads to the formation of group of organs. Organs lead to the formation of group of organs. Group of organs can be formed from organs, and organs can be produced through tissues. Tissues can be produced through cells. यानी कि अगर हम हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. समझिए, ज्यादा लिखिएगा, मैं बहुत कम लिखने वाला हूं, आज आपको समझाने वाला हूं. सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जो आगे चल के अपने ही कंपोनेंट्स के साथ में मिलके क्या बना देती है? टिश्यू. अच्छा, टिश्यू क्या है? टिश्यू को समझने का तरीका क्या है? टिश्यू इफ ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ क्लास 11 आप सब लोग आए, क्लास में बैठे, अभी आपकी किसी के साथ में दोस्ती नहीं है, ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो आप किसी के साथ में नहीं बैठे, जहां बैठे हुए. थोड़े दिनों बाद में आपको पता चला अच्छा वो उसके एक पर्सन है, उसका नेचर मेरे जैसा है, तो आपकी दोस्ती हो गई उससे. किसी और के साथ में नेचर मिला तो उसकी फ्रेंडशिप हो गई. यानी कि टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेल्स व्हिच एक्सप्रेसेस द सेम टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट एक्सप्रेसेस द सेम टाइप ऑफ जीन्स. हमारे सारे सेल्स क्या है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन टिश्यू क्या होता है? कार्डियक टिश्यू क्या है? All the cells that perform similar structure and similar function constitute the tissue. Similar structure means they have same morphology. Similar function means they perform the same function. They have same enzymes. That means they have same expression of genes. वो सारे cells जिनका expression of genes एक था, उन्होंने मिलके आगे tissue बना दिया. Tissue, similar type of tissue leads to the formation of organs. When large number of group of organs were being produced, these group of organs lead to the formation of an organ system. अब मान लीजिए हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स मिल गए, ब्लड वेसिकल्स के सेल्स, ये सारे अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज मिले और इन्होंने क्या बना दिया? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम.
circulatory system, digestive system, excretory system, the neuronal center nervous system, the reproductive system, the skeletal system, all these systems combines in our body to produce an organism. मैं और आप क्या है, एक organism है एक particular species के एक छोटे से organism. Okay, the same type of organism are these are also different types of organism. One organism, another organism, or this plant is also an organism of another species. I'm just keeping it here. Okay, let me keep all these things here. Now what I'm going to tell you is that species क्या है, group of individuals that have the ability to reproduce among themselves and produce fertile offspring. वो सारे individuals जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते थे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते थे, वो क्या बन गए, स्पीशीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं वो सब के सब मिलके क्या बना देते हैं, स्पीशीज. देखिए फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है डोंकी और अगर हमने हॉर्स के बीच में भी फर्टिलाइजेशन करा दिया तो उससे म्यूल बन गया. अगर हमने मेल डोंकी ले लिया तो उससे म्यूल बन गया, मेल हॉर्स ले लिया तो उससे हिना बन गया. लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं, इसलिए स्पीशीज केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म की कहलाती है जो रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके. अब स्पीशीज क्या बना देती है, पॉपुलेशन बना देती है. पॉपुलेशन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. अलग अलग पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही है ना, वो क्या बना देंगे, अलग अलग स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही हैं वो पॉपुलेशन बना देंगे. ये ज्योग्राफिकल एरिया है, ये रूम है, इस रूम के अंदर ह्यूमन भी है, मैं एक ह्यूमन, ठीक है, तो मेरी पॉपुलेशन कितनी है, सिंगल. लेकिन करोड़ों बैक्टीरिया भी है, एक प्लांट भी यहां पर रखा हुआ है, इसकी पॉपुलेशन. एक डॉग भी मान लीजिए, ये डॉग है, ये रखा हुआ है यहां पर, तो इसकी भी पॉपुलेशन एक हो गई. राइनोसोरस रखा हुआ है, इसकी भी पॉपुलेशन एक हो गई. तो यहां पर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन रेफर्स टू ग्रुप of individuals number of individuals of an species residing in a particular area at a particular time. कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीशीज के, उस जगह पे, उस समय पे. जगह और समय बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद आज से 5000 साल पहले इसी जगह पे डायनासोर खड़ा होगा. अरे मेरे को डायनासोर मत समझो तुम नालायक हो, ठीक है. तो पहले कभी 5000 साल पहले इस जगह पे कोई डायनासोर खड़ा होगा तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, एक. अब वो डायनासोर नहीं है, तो एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. टाइम और प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने डॉट 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 ये कुछ बैक्टीरिया बना दिए और मैं यहां पर कुछ इंसेक्ट्स बना सकता हूं. ये मैंने एक इंसेक्ट बना दिया. Okay, this insect is flying. Of course, मैं यहाँ पर रैट बना सकता हूँ, चूहा बना सकता हूँ. मैंने एक चूहा बना दिया, ये चूहा यहाँ से यहाँ पर जा रहा है. तो आप देख सकते हैं इस रैट का जो मस्कुलस की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी, 1 है. इस ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन कितनी है, 1. माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी है, इन थाउजेंड्स और इवन इन करोड्स. Then these populations lead to the formation of community. Now you can come forward, please. थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाए. तो अगर आप थोड़ा सा फॉरवर्ड देखेंगे तो आपको पता चलता है कम्युनिटी क्या चीज होती है. व्हाट इज दिस कम्युनिटी? हाँ, सो दिस कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. कितने अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल रह रहे हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक समय पे, एक टाइम पे. कितने अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल रह रहे हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, एक समय पे, एक टाइम पे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज कम्युनिटी. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन inhabiting a particular area at a particular time will constitute the community. What is an ecosystem? An ecosystem consists of both biotic as well as abiotic components living together. The component present in a particular area at a particular time. कितने अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग फॉर्म्स है, और नॉन बायोटिक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग फॉर्म है.
एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको मिला के हम क्या कहते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम. What is the biosphere? Biosphere is the one which contains all the different ecosystems present within itself. अब biosphere is made up of different types of ecosystem. अगर आप biosphere को बोलेंगे तो it contains all ecosystem. Biosphere contains all ecosystem. तो देखिए हमारी बॉडी से लेके, सेल से लेके इकोसिस्टम तक ये हायरार्की होती है. सेल क्या बनाता है? सेल क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. टिश्यू क्या बनाता है भाई? सेल forms tissue. Cell, the structure and functional unit of life. All organisms in this world are made up of cells or its component. Tissues क्या होते हैं? Group of cells which expresses the similar structure and similar function constitute a tissue. What this tissue produce? Tissue produces organ. Group of tissues that are destined to the group of tissues that are destined to perform a specific function constitute the organ. The different types of organ combine together to form an organ system. For example, circulatory, nervous, excretory, reproductive, anything else. All these different types of systems combine together, leading to the formation of an organism. An organism lead to the formation of a species if the individuals of a species have the ability to reproduce among themselves and produce fertile offspring. अगर individuals fertile offspring बना सकते हैं तो वो species हो गए. अब भाई species आगे चल के क्या बनाती है? Population. Species population कैसे बनाती है? Population होता क्या है? Number of individuals living in a particular area at a particular time of a particular species constitute population. कितने इंडिविजुअल हैं पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्पीशीज के, वो उसकी पॉपुलेशन को बनाते थे. व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इट फॉर्म्स अ कम्युनिटी. अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन जब एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, जैसे डायग्राम में आपने देखा था, यहाँ पर आपको शीप भी दिख रही है, यहाँ पर आपको ड्रोसोफिला भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको ग्रासेस भी दिख रही है. अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं जो मिलकर बना रही हैं आपकी कम्युनिटीज को, सॉरी ये कम्युनिटी को बना रही है. Community lead to the formation of an ecosystem. Ecosystem is being made up of both biotic and abiotic component. Ecosystem is made up of both biotic as well as abiotic. Abiotic component. It is made up of both these things. It is made up of both biotic or abiotic components. Okay. Biosphere, the sum total of all these ecosystem. When all the ecosystem, the hydrosphere, lithosphere, atmosphere combine together, it lead to the formation of biosphere. Now what we are going to talk about here is that we are going to talk about the biodiversity. हमें किसके बारे में बात करना है? हमें बात करनी है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कितने अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर अर्थ पे, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं. How many different types of living organisms are present in a particular area at a particular time constitute its biodiversity. कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय पे पाए जा रहे हैं, वो है उनकी बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें अच्छे से स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंटली किस चीज को स्टडी करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्रीट बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए वी शुड नो अबाउट द नोमेनक्लेचर. व्हाट डू यू मीन बाय नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर refers to the procedure by which we name an organism. For example, this dog could be, this organism, the dog could be called as dash 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 in different languages. But there should be a name common and highly specific for this living organism. And this type of methodology was using the techniques of binomial nomenclature, which was being developed by Carolus Linnaeus, who postulated that
the name of an individual or the name of an organelle should consist of two words. The first representing the genus and the second representing the species. Okay, so supposingly this is a pea plant, Pisum sativum. अगर मान लीजिए ये पी प्लांट है, ये तो आर्टिफिशियल है, तो अगर मान लीजिए ये पी प्लांट होता और ये पाइसम सटाइवम होता, तो पाइसम इंडिकेट कर रहा था उसका जीनस, सटाइवम इंडिकेट कर रहा था उसकी स्पीशीज. ब्रेसिका ओलरसिया जिसे आप सरसों बोलते हैं, ब्रेसिका ओलरसिया आप कैबेज बोलते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी बोलते हैं. तो ब्रेसिका ओलरसिया में ब्रेसिका क्या है? जीनस है. ओलरसिया क्या है? फाइलम है, स्पीशीज है. तो आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम से नोमेनक्लेचर के थ्रू जस्टिफाई करते हैं ताकि सबका एक कॉमन नोमेनक्लेचर बन सके, सो दैट ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर ऑफ इटसेल्फ. There are certain scientific bodies which have been designed to provide this nomenclature. One is known as ICBN, International Center for Botanical Nomenclature, which deals in the study of plant species. जो प्लांट स्पीशीज के नोमेनक्लेचर के लिए बॉडी बनाई हुई है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. अनदर वन इज ICZ, जो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर को करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ICZ, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. So that each and every organism should have a particular nomenclature of its own. Okay. So then what we have to study? We have to study about binomial nomenclature. Now what is this binomial nomenclature? Carolus Linnaeus identified the problem with tribal nomenclature. Previously the nomenclature was tribal. पहले जो सबसे पहले nomenclature शुरू हुआ वो कैसा था? वो था tribal nomenclature. जिसको जैसा नाम पसंद आया वैसा रख दिया. किसी कोई काला है तो उसका नाम रख दिया कलुआ, कोई गोरा है उसका नाम रख दिया मलूक, मलूकचंद. तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स, मेरा नाम मत रखो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज बीइंग नेम्ड. दिस मेथोडोलॉजी वाज रेफर्ड टू एज द ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. सो to study biodiversity, the first important feature was to name the living organism. So nomenclature system evolved. Nomenclature. It refers to a system. It refers to a system for providing systemic names to each and every living organism. Every living organism which specify a key characteristic feature of that living organism. ऐसा नाम दो जो उसके कोई characteristic feature को define करता हो, which specifically highlights the key characteristic feature, the key characteristic feature of that living organism, of that living organism. The first method of nomenclature which was being used was tribal method of nomenclature. जो दुनिया में सबसे पहला nomenclature का method यूज किया जाता था उसका नाम क्या था? Tribal method of nomenclature. Now what do you mean by tribal method of nomenclature? दिख रहा होगा आप लोगों को. The first method was tribal method of nomenclature. Just writing it with another marker. Tribal nomenclature system.
In this system, the name of an organ was based upon its tribal characteristic feature. Each organ was named on the basis of its was named on the basis of its external morphological features, of its external morphological features, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे नाम दे दिया गया। तो अगर आप नाम देखें तो अलग अलग तरीके के जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं उन्हें उनके करेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर नाम दे दिया गया। द डॉग वाज बीइंग कॉल्ड एज डॉग एज इट बार्क्स। ओके, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया गया। बट देन this led to a confusion in the identification of the organism. So several tribal names led to a state of confusion. So soon the tribal nomenclature system was replaced with a planned binomial nomenclature system, with a well planned and organized binomial nomenclature system. एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम was being developed through Carolus Linnaeus. इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के लिए। इन्होंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड से बना होगा, एक जीनस और एक होगा आपका स्पीशीज नेम। इन्होंने बोला the first word in the biological name represent the genus while the second represent the species name. All the different names will be taken from the Latin language as these are dead languages and are not being used. If both of the words are to be written, then in the typological type they must be italicsed with the genus name indicated in capital letter and the species in a small letter, and if they are handwritten they must be underlined. The first word denoting the genus name should be written with a capital letter and the second word denoting the species name should be written with a small letter. So this was the brief content of the binomial system of nomenclature. तो binomial system of nomenclature में इन्होंने कुछ चीजें बताई। इन्होंने बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम दो वर्ड से बना होगा, जीनस और स्पीशीज नेम। जीनस पहले आएगा, स्पीशीज बाद में आएगा। जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा, स्पीशीज के वर्ड्स स्मॉल होंगे। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आपको इटैलिक्स करना पड़ेगा। अब क्या क्या एक्सेप्शंस थे, क्या क्या चीजें हुई, जिस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, वैरायटीज क्या होती हैं। देखिए कई ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी जीनस के बाद में भी उनका जिनकी स्पीशीज के अंदर भी वेरिएशंस थे। फॉर एग्जांपल कॉर्वस स्प्लेंडेंस, क्रो, कौवा। क्रो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस पर्सोनेटा। 3 तरीके के क्रोज होते हैं, इंडियन क्रो, श्रीलंकन क्रो जो इंडियन से भी काला होता है, और एक पाकिस्तानी क्रो, a bit whitish type of crow. Okay,
वो ग्रेइश टाइप होते हैं। तो इन 3 क्रोस के अंदर भी 3 वैरायटीज हैं। और समझना चाहते हैं तो समझिए, आपने गोभी का एग्जांपल लिया था, ब्रेसिका ओलुरसिया वैरायटी, कोलुरप्पा, कैपिटाटा, ब्रोकली आप सुनते हैं। तो ऑल दीज आर वैरायटीज। व्हाट आर वैरायटीज? When there are differences between individuals of a particular species also in morphological as well as anatomical terms, then the species get divided into varieties. कभी कभार इंडिविजुअल जो स्पीशीज के हैं उनके अंदर भी अंतर आता है, और उनके अंदर अगर अंतर आ जाता है तो वो बना देते हैं नई वैरायटीज को। सारे ही डॉग्स हैं, लेकिन डॉग्स के अंदर कितनी वैरायटीज हैं? अब देखते हैं, पोमोलियन, जर्मन शेफर्ड एंड दिस एंड दैट, ऑल दीज आर डिफरेंट वैरायटीज। They can still interbreed among themselves. They belong to a same species, but these are all different varieties. Humans में क्यों नहीं वैरायटी बनी? Humans के अंदर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल था, ज्यादा दिमाग था, ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए and they reproduced among each other. That is why there was not a formation of another variety. But in the prehistoric part, अगर आप थोड़ा सा इवोल्यूशन पढ़ें, आप आगे पढ़ेंगे भी, क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे जावा मैन अलग है, पीकिंग मैन अलग है, निएंडरथल मैन अलग है, क्रो-मैग्नन मैन अलग है। ये सब क्या है? ये सब वैरायटीज हैं, ये सब अलग अलग वैरायटीज हैं जो आके एक्सटिंक्ट हो गई। एंड वी सर्वाइव्ड, होमो सैपियंस, सैपियंस हैव सर्वाइव्ड एंड वी विल बी प्रोसीडेड बाय होमो सैपियन फ्यूचरलिस। हमारे आगे कौन आ जाएगा? होमो सैपियन फ्यूचरलिस। अब कैरोडस लिनियस के इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को समझना है हमें, और उसके एग्जांपल्स और उनके क्वेश्चंस को समझना है, जो हम नेक्स्ट आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक लंबी क्लास लेके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को खत्म करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो वी विल बी मीटिंग सून इन आवर नेक्स्ट क्लास वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन ग्रेट डिटेल, कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं नीट के अंदर। ठीक है, so it's all over from my side. You can always post your queries on our YouTube channel. If you are on YouTube or through WhatsApp, you can ask me all of your queries. Please अपने questions लगाते रहिए और queries पूछते रहिए। Thank you, thanks a lot.